my dear students, my name is Pranjal Tripathi. Today I am going to teach you the remaining part of the first chapter of physics class 9, that is motion. In the previous video I have covered some topics related to this chapter. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, which were what is motion, what was the definition of motion, what were the types of motion, that were linear motion, circulatory motion, vibratory motion, uniform motion and non-uniform motion. I have also given an idea about what are scalar quantities and what are vector quantities. स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम. डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ किसी बॉडी ने कवर किया, दैट इज डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. See, it is written the shortest distance measured from initial to final position, or we can say that initial to final point. Let us suppose there are 2 points A and B. So any body is traveling from this point like this, and it is coming in this direction up to point B. This is point B. So the distance between the A and B will be this path. But what would be the displacement? Displacement is the shortest distance between A and B, which is a straight line. Hence we can say that displacement has a unique direction. एक specific direction है इसमें displacement में. But distance में देखिए कोई direction नहीं. Here we can see there is no direction. In the next point, it is written that distance has magnitude but no direction. अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा, कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, क्योंकि बॉडी यहाँ से चल रही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, तो मैग्नीट्यूड तो होगा, बट देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. स्पेसिफिक डायरेक्शन किसमें होगी? डिस्प्लेसमेंट. Here we can see that this is the specific direction, like this, from point A to B, from initial position to final position. See, displacement has magnitude as well as direction. तो displacement में क्या है? Magnitude भी है और direction भी है. In the third point, it is written scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Why it is scalar? Because it has no direction. And displacement is a vector quantity because it has a unique direction. Specific direction होता है displacement में, इसलिए उसको vector quantities में रखते हैं. Now the last point is it always has a positive value. Distance हमेशा positive होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में. क्योंकि अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कुछ दूरी पर जाओ, तो कुछ दूरी वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, कभी नेगेटिव में तो दूरी नहीं हो सकती. डिस्टेंस कैन नाइदर बी नेगेटिव. एंड द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. व्हाट इज स्पीड? इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव learned or studied about this topic, speed. What is speed? Speed is the distance covered by a body in unit time. Distance किसी बॉडी के द्वारा जो कवर किया गया है एक यूनिट टाइम में, that is a speed. स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. This is speed, and the unit of speed is
The unit of distance meter and time is second. So the unit of speed is meter per second. This is the standard unit. Another unit of speed is kilometer per hour. स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में. ऑल्सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप्स. There are usually 4 types of speed. Four types. First one is average speed. First one is average speed. Second is uniform speed. Third is non-uniform speed. And fourth one is instantaneous speed. So these 4 are the types of speed. We will discuss them one by one. First of all, what is average speed? Average speed क्या है? The ratio of total distance traveled by a body to the total time taken. Average speed is total distance traveled by a body divided by total time taken. So average speed is like original definition of speed कि total distance एक बॉडी ने जितना कवर किया उसको उसका रेशियो इससे टोटल टाइम टेकन मींस उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा उस बॉडी को, उस उन दोनों का रेशियो है एवरेज स्पीड. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड इज जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन एन आइडिया अबाउट व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. Now we will discuss what is uniform speed. Uniform speed is when the speed of any body remains equal in equal interval of time. Means कि कोई टाइम इंटरवल है, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में किसी व्हीकल की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है. फिर उसके अगले 5 सेकंड में भी अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, देन वी कैन से दैट द स्पीड इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज कांस्टेंट, ना बढ़ रही है ना घट रही है. तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर सेम टाइम ड्यूरेशन में स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, वही स्पीड रह रही है, चाहे आप 5 सेकंड पहले मेजर करें चाहे 5 सेकंड बाद मेजर करें, विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्पीड में वेरिएशंस होते हैं. वेरिएशंस कैसे? फॉर एग्जांपल एक टाइम ड्यूरेशन लिया, फॉर एग्जांपल कि 5 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन है. अब इसमें 5 सेकेंड्स में किसी व्हीकल की स्पीड जनरली रहती है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर. बट इन द नेक्स्ट स्पैन ऑफ टाइम
or we can say that in the next 5 seconds the speed varies to 17 किलोमीटर पर आवर। पहले 5 सेकंड के लिए तो मान लिया 10 किलोमीटर पर आवर थी, बट उसके अगले 5 सेकंड में ही स्पीड वेरी कर गई। कितनी वेरी कर गई? 17 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर का वेरिएशन था। तो क्या जहां पर स्पीड में फ्लक्चुएशंस होते हैं, देन द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मींस नॉन कांस्टेंट, एक जैसी नहीं रह रही स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल, किसी भी एक क्षण पर हमने किसी स्पीड को मेजर किया, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी व्हीकल में, फॉर एग्जांपल एक कार में जा रहे हैं एंड योर ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। सडनली आपके माइंड में कुछ आया एंड आपने देखा स्पीडोमीटर पर क्या स्पीड है, तो आपको दिखाई पड़ा कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो एट दैट इंस्टेंट आपने देखा कि स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर आवर। दैट स्पीड इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो स्पीड जो है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। Like the speed, velocity is very similar to speed. Velocity, the definition of velocity is the displacement done by a body or a body which is displaced for some distance upon total time taken। फिर से बताता हूं कि velocity क्या है? Velocity is the displacement covered by body in unit time। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था यहां पर। वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है? डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर होती है। मैंने बताया कि ये बिल्कुल सेम लाइक अलाइक द स्पीड, वेरी सिमिलर टू स्पीड। केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और स्पीड में क्या था? डिस्टेंस। यूनिट देखिए सेम, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड को भी हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। वेलोसिटी को भी सेम यूनिट में मेजर करते हैं। और वेरी सिमिलर टू स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आल्सो। 4 टाइप्स। एवरेज वेलोसिटी, very similar to speed, average velocity, uniform velocity, non-uniform velocity, and the last one is instantaneous velocity। वेरी सिमिलर। तो हम देख सकते हैं कि चारों जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल वेलोसिटी में वही टाइप्स हैं जो कि स्पीड में। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज व्हेन द वेलोसिटी डज नॉट चेंज फॉर ए गिवन स्पैन ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी फ्लक्चुएट्स for a given time। Instantaneous velocity, the velocity at any
certain instance or at any certain point of time. So these are the types of velocity. Now the next topic is acceleration. Very important topic. Before this, we have heard about this topic acceleration several times in our daily day-to-day life. हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस शब्द के बारे में कई बार सुन चुके होंगे। कहाँ? एक्सेलरेटर जो लेते हैं ना, बाइक का, स्कूटर का, कार का, वो इसी से रिलेटेड एक्सेलरेशन से। So now I will tell or define or describe about this acceleration. What is acceleration? Acceleration is the change of speed or velocity per unit time. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मेजर करना हो तो सबसे पहले देखेंगे उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज है या स्पीड में कितना चेंज है, उसका रेशियो निकालने के टाइम के साथ, देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, फॉर एग्जांपल रेस्ट पे रखा स्टेशनरी, तो उसकी इनिशियल पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी। आफ्टर सम टाइम इट हैज अचीव्ड ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अगर 5 सेकंड के बाद उसने कुछ स्पीड अचीव कर ली, हम कहते हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर की, देन द वेरिएशन इन स्पीड विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर थी, इनिशियल थी 0, तो 15 माइनस 0 कितनी हो गई? 15। और मान लीजिए टोटल टाइम लगा उसको 5 सेकेंड, तो 15 अपॉन 5 is equal to 3, and the unit of acceleration is meter per second square. ये यूनिट कैसे आई अभी मैं आपको बता दूं। चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट कितनी है? क्या है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। अब क्योंकि एक्सेलरेशन इन दोनों का रेशियो है, तो हम लोग इनकी यूनिट भी ऐसे निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में 1 कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर इंटू 1 दैट इज मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड दैट इज सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now again, types of acceleration. Acceleration के types कितने हैं? There are usually 4 types. Four types of acceleration are there. First one is uniform acceleration.
Second one is non-uniform acceleration. Third one is positive acceleration. And fourth one is negative acceleration. This negative acceleration is also known as retardation. Here we can see that acceleration are of four types: uniform acceleration, non-uniform acceleration, positive acceleration and negative acceleration. So first of all we will discuss these types of acceleration one by one. So the first type of acceleration is uniform acceleration. First type is uniform acceleration. In uniform acceleration, a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal intervals of time. मीन्स क्या कि अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कह सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन लिया 5 सेकंड्स का, तो उसमें किसी बॉडी की स्पीड का वेरिएशन 5 मीटर पर सेकंड का था. जो उसकी स्पीड वेरी कर रही थी वो 5 मीटर पर सेकंड की थी. कैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी स्पीड रही होगी कुछ ना कुछ 5 मीटर पर सेकंड, फिर आफ्टर 5 सेकंड द स्पीड वुड बी 10 मीटर पर सेकंड. तो 10 माइनस 5 कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड का वेरिएशन. अगर ये 5 मीटर पर सेकंड का वेरिएशन एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन पर रहेगा, देन द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कि पहले 5 सेकंड में भी स्पीड का वेरिएशन यही रहे 5 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में भी स्पीड का वेरिएशन यही रहे 5 मीटर पर सेकंड. फिर से समझाता हूं आपको इस चीज को कि फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने स्पीड ले ली 5 मीटर पर सेकंड. अब 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड. उसके 5 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड. उसके 5 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड. Here we can see that the speed of the body is changing continuously, but the variation of speed is constant for a specific duration of time. टाइम 5 सेकंड का है, ये भी 5 सेकंड का है, ये भी 5 सेकंड का है. तो देखिए 10 minus 5 that is fluctuation between this time period is 5 meter per second. Fluctuation between this point is fluctuation किसका? स्पीड का. तो आपको दिख रहा है 15 minus 10 5 मीटर पर सेकंड, 20 minus 15 5 मीटर पर सेकंड. तो हर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए स्पीड का वेरिएशन सेम है. Hence we can say that the body is in uniform acceleration. I hope आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. यूनिट तो एक्सेलरेशन की आपको बता ही चुका हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब बात आती है
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है कि टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए वही रहा 5 सेकेंड, बट स्पीड वेरिएशन डिफर करते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द स्पीड वॉज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 seconds the speed became 20 meter per second. After 5 seconds the speed become 5 meter per second. तो हम देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन देखिए 5 सेकेंड का रहा, बट फ्लक्चुएशन स्पीड में देखिए एक बराबर नहीं है। जैसे कि 20 - 10 इसमें फ्लक्चुएशन कितने का वेरिएशन 10 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर स्पीड क्या हो गई बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 - 20 दैट इज -15 मीटर पर सेकेंड। मीन्स क्या स्पीड यहाँ से डिक्रीज हुई। कितना डिक्रीज हुई -15। पहले स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 5 हो गई। तो स्पीड वेरिएशन सेम नहीं है। तो जहां पर स्पीड वेरिएशन सेम नहीं होगा फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। What is positive acceleration? When the direction of acceleration is same in the direction of velocity, then the acceleration is positive acceleration. Positive acceleration का एग्जाम्पल हमारा क्या है, व्हीकल है कि हम इनिशियली किसी लो स्पीड पर जा रहे हैं और एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, खींच दिया, तो क्या होता है स्पीड वेरी करती है और बढ़ती है स्पीड। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी v। देखिए एक चीज और बता देता हूं, दैट फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो v से रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल v। और इनिशियल वेलोसिटी जो होती है दिस इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u। तो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी बॉडी की वो ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। ये एक पहचान है, रिकॉग्निशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्कूटर पर जा रहे थे, एक्सेलरेटर खींच दिया तो स्पीड बढ़ी, तो फाइनल स्पीड बढ़ी ना, तो फाइनल स्पीड बढ़ी तो v बढ़ा, और u जब v बढ़ेगा तो u कम होगा। तो v is greater than u, that means the acceleration is positive. The fourth type of acceleration is negative acceleration. When the direction of the object acceleration is in the opposite डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक्सेलरेशन इज क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ये है कि किसी भी एक स्पीड से हमारा व्हीकल चल रहा था, सडनली ब्रेकर आ गया सामने, तो हमने क्या किया ब्रेक मारा, स्पीड चेंज हुई, स्पीड में वेरिएशन आया। जहां पे भी स्पीड में वेरिएशन होगा वहां पे क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक मारा तो स्पीड कम हुई। इस केस में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा थी तो पॉजिटिव था, अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो गई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से आप किसी इनिशियल वेलोसिटी से जा रहे थे, एकदम से ब्रेक मारा तो आपकी स्पीड घटी, कम हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v is less than u, initial velocity। इसमें initial velocity is greater than v,
इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से। अब निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। यूजली एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से और रिटार्डेशन को डिनोट करते हैं माइनस से। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। दिस माइनस इंडिकेट्स द अपोजिशन इन डायरेक्शन। So students, our next topic is equations of uniformly accelerated motion. कुछ equations होती हैं uniformly accelerated motion की। Basically there are three equations. We will derive these equations now, one by one. So first of all, first equation of motion. First equation of motion. Let us suppose any body is moving with initial velocity u and final velocity v. That body is subjected to some acceleration a in time t. कोई बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है v, एक्सेलरेशन उसका है a, और टाइम टेकन जो टाइम उसका जो लग रहा है फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी तक जाने में, दैट इज t. So now we will derive the first equation of motion. We know that acceleration is what? Change in velocity upon time. This is acceleration. Change in velocity is what? V minus u upon t. Hence we can say that A is equal to V minus u upon t. Now doing the cross multiply, AT is equal to V minus u. U को इक्वल टू के इधर ले आता है तो माइनस का u है, इधर आ गया इक्वल टू के, तो किसका हो गया? प्लस का। u plus at is equal to v. This is the first equation of motion. First equation of motion derive हो गई यहाँ पर, जो कि है v is equal to u plus at. Now second equation of motion. Second equation of motion. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। एवरेज वेलोसिटी, किसी भी चीज का एवरेज जो होता है वो हम लोग जानते हैं क्या, कि जितनी भी चीजें होती हैं अपॉन नंबर ऑफ दैट थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में डिफरेंट एजेस के बच्चे होते थे, उनका एवरेज निकाला था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, कि किसी की एज 10 इयर्स है, किसी की 20 इयर्स है, किसी की 15 इयर्स है। तो इन तीनों का एवरेज क्या करते थे, सबकी एज प्लस कर देते थे अपॉन टोटल नंबर कितना 3, उससे डिवाइड कर देते थे। तो अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितनी है, दो वेलोसिटीज। कौन कौन सी? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को प्लस कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी थी, एक और एक दो। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी टोटल दो वेलोसिटी थी, तो हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ वी नो दैट
The formula for distance is equal to velocity into time. Here it is average velocity. Distance is equal to average velocity into time. Now we will put this formula of average velocity into this formula. Distance, here we are denoting distance with s. So average velocity, or formula for average velocity is final plus initial upon 2. Final velocity is what? V. Initial velocity is what? U upon 2 into time. Now, from the first equation of motion, we know that V is equal to U plus AT. Putting that value here, V is equal to U plus AT plus U on 2 into T. इसमें क्या किया गया है? ये V की वैल्यू पुट की गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है बस। यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट दी गई इस फॉर्मूले में, डिस्टेंस इस फॉर्मूले में, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट की गई। अब v की वैल्यू पुट की गई कहां से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहाँ पर v की वैल्यू पुट की गई u प्लस AT, जो कि अभी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। तो अब u प्लस AT प्लस u, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू t। ये क्या चला था? s। अब t का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2ut प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। नाउ इंडिविजुअली उसे डिवाइड कर देते हैं, s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। The final equation is 2 से 2 cancel, ut plus half AT square, ut plus half AT square. This is the final equation. This is the final equation. S is equal to ut plus half AT square. So students, now we will discuss third equation of motion. Third equation of motion. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग को क्या मिला? v इक्वल टू u प्लस AT, यहाँ से u इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए तो माइनस का हो गया इक्वल टू AT। t वैसे था a अपॉन में आ गया, v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t। अब आप सोच रहे होंगे ये भी क्यों कर रहे हैं ऐसा? अभी इसकी वैल्यू t की वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। Now we will put this value of t in second equation of motion, which is s is equal to ut plus half AT square. Now putting this value of t, u v minus u upon a plus half AT
t square means b minus u upon a whole square. Now here we will write solving this one ub minus u square upon a plus half a v square plus u square minus 2 ub upon a square because it was whole square. Now a cancel, one power cancel. Now we can say that, see that there is a on the denominator in both terms. We can take the LCM. This was S. Here, continue. UV minus U square plus, sorry, here LCM will be 2A because this is the multiplication of 2 in A, therefore LCM will be 2A. So here it will be 2UV minus 2U square plus V square plus U square minus 2U. 2UV cancel, plus minus V square, here minus 2U square, here plus U square. So what will be there? V square minus U square upon 2A. Here it is S. Now so multiplication of 2A into S, 2AS is equal to V square minus U square. The final line of this derivation, that will be V square is equal to U square plus 2AS. This is the derivation of, this is the third equation of motion, and this was the derivation of third equation of motion. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखिए v इक्वल टू u प्लस at, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिला, इससे हमने क्या किया, t की वैल्यू निकाली। अब t की वैल्यू हमने किसमें पुट की, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, s इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर इसमें हमने वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, इसमें जहां जहां पर t है, देखिए यहां पर t है और यहां पर t है, तो जहां जहां t है वहां पे उसकी t की वैल्यू जो है, t की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। b माइनस u अपॉन a हाफ a t स्क्वायर, t स्क्वायर की जगह देखिए b अपॉन b माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर कर दिया, t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद सॉल्व किया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस माइनस जो कैंसिल हुए उनको कैंसिल किया। उसके बाद हमारा ये टर्म आया s इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया 2as माइनस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फाइनल जो टर्म आया दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द फाइनल third equation of motion. It is very important and usually comes in the examinations. So students, now we will see the graphical representation of motion. मीन्स किसी भी मोशन को ग्राफ से कैसे
डिनोट किया जाए या डिस्प्ले किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे y एक्सिस पे और टाइम ले लेंगे x एक्सिस पे। This is origin. Now we will see that for any object at rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा है फॉर ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर रखा है तो वो कुछ टाइम बाद भी वहीं पर रखा रहेगा, अपने आप को चल नहीं देगा वहां से। आप अगर किसी बुक को एक जगह पर रख के जाएं तो अपने आप कुछ देर बाद तो चल नहीं जाएगी, वहीं पर रहेगी ना। तो यहां पर इन केस ऑफ इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है, देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम वुड बी स्ट्रेट लाइन। तो उनके बीच में जो ग्राफ होगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। नाउ इन सेकंड केस, if the body is in यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मैं जब आपको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा था तब भी आपको मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, दैट इट इज ए स्ट्रेट लाइन which is inclined from time axis और x axis। टाइम एक्सिस ये inclined मींस किसी एंगल पे, किसी ना किसी एंगल पे, फॉर एग्जांपल मान लो थीटा। तो अगर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सी यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हियर 5 10 15 20 25, here it is, for example we take the duration of 10 seconds, 10 20 30 40 50, here we can see that here we can see that in certain time duration, given time duration 10 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस है वो भी देखिए इक्वल, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मींस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये आज आप लोग ने ग्राफ में भी देख लिया, अभी तक आप लोगों ने केवल सुना ही था, आज मैंने आपको ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया ऐसे ही नहीं मैं बोलता, आज आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्राइब भी कर दिया मैंने कि डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस ये बॉडी इनिशियली कोई बॉडी रेस्ट पर रखी थी, 10 सेकंड के बाद वो 5 मीटर पर आ गई। डिस्टेंस हमेशा क्या मीटर में मेजर करना है, तो 5 मीटर पर आ गई। 20 सेकंड के बाद वो बॉडी 10 मीटर पर आ गई।
30 सेकेंड के बाद वो बॉडी 15 मीटर पर आ गई, मीन्स 10 से 15 गई। सबसे पहले 5 सेकेंड की 10 से 15 गई, मीन्स उसका डिस्टेंस का भी वही रेशियो है जो कि टाइम का रेशियो, उसी रेशियो में बढ़ रहा है। नाउ देयर इज द थर्ड केस। In third case, if the body is in non-uniform motion, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब कैसा ग्राफ बनेगा? Then the graph would be curved in nature. It is not a straight line. See, it is curved. Means there is no uniformity in it. कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। कोई निश्चित टाइम में कोई बॉडी कम डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकती है या उसी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर 5-5 सेकेंड की हम लोग ड्यूरेशन ले लें तो पहले 5 सेकेंड में बॉडी मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो अगले 5 सेकेंड में वो 7 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगी। Here we can see that there is no uniformity. That's why it is non-uniform in nature. Also, I want to clear that distance time graph is very apart, means is equal to the displacement time graph. So I want to tell that distance time graph is equal to, or we can say that same as displacement time graph. There is no any difference between distance time graph and displacement time graph. जो भी केसेस हैं आपके 3 केसेस, रेस्ट का बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट तो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी वही ग्राफ बनेगा, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन वही ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और थर्ड केस में इफ द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी सेम। बस यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? Now we will study the graph between velocity and time. इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Now we will study what is velocity time graph. Velocity time graph. इसका फर्स्ट केस when the body possesses no acceleration. जब बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, जब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, then there will be a straight line. Here it is velocity is on y-axis and time is on x-axis. Then the graph between velocity and time, when the body is possessing no acceleration, will be a straight line. In second case, when the acceleration is uniform, when the acceleration is uniform, जब acceleration क्या है? यूनिफॉर्म हो, then there will be a straight line from origin O which is inclined at an angle
फ्रॉम टाइम एक्सेस से कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या है, देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हमको एक दिखेगी क्या, स्ट्रेट लाइन, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इन थर्ड केस, when the acceleration is non-uniform, when the acceleration is non-uniform, जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व। सेम इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। जैसा कि अभी पहले केस में आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है, बस आपको ये याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, चाहे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो, द ग्राफ विल बी कर्व। और जब यूनिफॉर्मिटी की बात होगी देन द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। बस आपको सीधा सिंपल एक ये फंडा याद रखना है बस। जहां पर यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी देन देयर विल बी ए स्ट्रेट लाइन, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी वहां पर ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा।